Being a NEET aspirant 2025, are you also worried about your future? If not, we are, because we have seen a huge scam in NEET 2024. So here we are, we brought to you MBBS abroad in 2025 so that you can save your future and build big in your future. As we have all seen कि NEET 2024 में क्या हुआ है. Although बहुत सारे बच्चे select भी हुए हैं, but this can happen in NEET 2025. Even if that doesn't happen, India का जो हाल है इस टाइम पे, we have so less of seats and so huge number of students. 27 lakh students fighting for just 1 lakh seats. Do you think it is fair? Of course it is not. But today, MBBS Abroad 2025 have become a need for you. पहले होता था कि बच्चे शौक से जाते थे कि MBBS अब्रॉड करेंगे हम, we'll get more exposure, हमें अच्छा लगेगा, but then today it is a need of an hour. So here I am, Srishti Kheda. We help students in MBBS abroad and we guide them end to end. It is not just कि बस admission करा के छोड़ना है, no. We are there for you end to end journey, starting from your guidance, consulting you, and then till your convocation. And it is not just MBBS abroad, it is about MBBS in India as well. Yes, you heard that right. We help in MBBS abroad and MBBS in India as well. Before I go ahead in the video, I want to ask you guys कि आपके क्या plans है for NEET 2025? Obviously, you must be studying hard, but what is your goal? What do you want to achieve? बहुत सारे बच्चों ने एम सोचा होगा, बहुत सारे बच्चों ने कुछ गवर्नमेंट सोचा होगा, some might have already thought about MBBS abroad. Whatever your plans are, do put that in the comment section and I will personally help you reach your destination. I hope आप सबने comment कर लिया होगा. Now let's get into it. In this video, we are particularly going to talk about MBBS abroad 2025. Yes, we do work for MBBS in India as well. उसके लिए एक separate video मैं shoot करके डालने वाली हूँ. But in this video, we are particularly going to talk about MBBS abroad 2025. अगर आप भी NEET aspirant हैं 2025 के, so this video is going to be a very helpful video to you. चाहे आप इंडिया के लिए ही क्यों ना प्लान कर रहे हो, you should have a plan B always. So start करते हैं कि MBBS abroad में क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या प्रोसेस है. Not just process, in fact end-to-end guide of the complete admission process. खर्चा कितने होने वाला है? Obviously being a parent or a student, आप जानना चाहेंगे कि खर्चा कितने होने वाला है, so fee structures and everything. Apart from it, क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, कैसा एक्सपोजर मिलने वाला है, आप नेक्स्ट के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें. So make sure you watch the video till the end. The moment we hear the word MBBS abroad, बहुत सारी चीज़ें आती हैं माइंड में, लाइक वी नो अबाउट रशिया, वी नो अबाउट जॉर्जिया, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, एंड देन वी गेट कन्फ्यूज्ड कि करना क्या है, जाना कहाँ पे है. सो सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रीज़ के बारे में कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उन हर एक ऑप्शन में कितना कितना बजट है, क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन है, कैसी कैसी फैसिलिटीज़ हैं, और क्या क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा, और आपको सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में आने के बाद लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा. सो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल स्टार्ट वन बाय वन. हम कंट्री टू कंट्री मूव करेंगे एंड साइड बाय साइड हर एक कंट्री के साथ में आई विल टेल यू द बजट, एडमिशन प्रोसेस, NMC रूल्स एंड रेगुलेशन. सो मेक श्योर कि आप स्टिक करें लास्ट तक अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन जानने के लिए. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट MBBS in Russia 2025. Whenever we think about MBBS abroad 2025, the first thing that we all know is MBBS in Russia. Obviously, Russia इतना पुराना है. It's been like 40 plus years. Russia is educating Indian students in the field of medicine. और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं. कोविड की वैक्सीनेशन से लेकर के बहुत सारी चीज़ें रशिया ने डेवलप करी and they have got a huge infrastructure. When I use the word huge, I absolutely mean it. You know, if you look at the universities, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप उठा के देख लीजिए, it is like huge. इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस से जब आप उसको कंपेयर करेंगे, you would like कि मैं इंडिया में क्यों पढ़ूँ? That is what even we feel or I feel personally when I go and visit those universities. You are going to feel the same when you would know the size, infrastructure and facilities that MBBS in Russia offers you. Apart from infrastructure and experience, ये combination already बहुत अच्छा है. Huge infrastructure and 40 plus years of experience. Apart from this combination, MBBS in Russia offers you all this in just 23 lakhs. Yes, you heard that right. And this is not a per year cost.
मुझे पता है MBBS इन इंडिया 20-25 लाख पर ईयर होता है, तो हमको लगता है MBBS अब्रॉड भी ऐसा ही होगा या इससे महंगा होगा, बट दैट इज नॉट ट्रू. MBBS in Russia is available at just 23 lakhs for the complete course. और इस complete course में आपका ट्यूशन फीस, आपका हॉस्टल फीस, आपका खाने का खर्चा, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एंड टू एंड. नाउ यू मस्ट बी सरप्राइज्ड कि 6 साल का कोर्स है और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी अच्छी फैसिलिटीज, इतना एक्सपीरियंस, एंड ऑल यू नीड टू पे इज 23 lakhs, एंड दैट टू इन 12 इंस्टॉलमेंट्स. आपको ये पैसा एक साथ भी नहीं देना. दैट इज अ चार्म अबाउट इट, राइट? बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो इट इज अ चार्म कि आप इतना सारा अमाउंट, जो कि जस्ट 23 lakhs है, इंडिया में आई नो इट इज पर ईयर होता है, बट 23 lakhs, दैट टू यू हैव टू पे इन 12 इंस्टॉलमेंट्स. बहुत ईजी रहने वाला है आपके पेरेंट्स के लिए ऑन देयर पॉकेट, बिकॉज MBBS इन रशिया इज क्वाइट अफोर्डेबल. सो व्हाट इट ऑफर्स अस इज a huge infrastructure, a very good experience, 40+ years of experience, and affordability. ये तीनों चीज़ें आपको इंडिया में तो नहीं मिलने वाली है until and unless आप एम्स या किसी बहुत अच्छे गवर्नमेंट में सेलेक्ट ना हो जाओ. ये चीज़ें आपको इंडिया में कभी नहीं मिलने वाली है. So why not Russia? Why not MBBS abroad 2025? So if you are also a student who is planning for MBBS abroad 2025, Russia is going to be a dream destination. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, मैं पर्टिकुलरली आई विल नॉट जंप इन टू द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बिकॉज रशिया हैज़ लाइक 50+ यूनिवर्सिटीज़. आई वुड लाइक टू कवर देम इन अ डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर, बट जस्ट टू गिव यू अ ग्लैंस ऑफ इट, आई वुड से कि 23 लाख से लेकर के 40 लाख तक की रेंज की यूनिवर्सिटीज़ हैं. डिपेंड करता है उनके एक्सपीरियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज़ों पे, उनके बजट जो है वो उन सब पे डिपेंड करते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं, चाहे कजान स्टेट, कजान फेडरल, फार ईस्टर्न फेडरल, देयर आर सो मेनी, ऑल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज. इफ यू ऑल्सो प्लान एंड ड्रीम टू स्टडी फ्रॉम अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सी आई वुड लाइक टू रिपीट दैट अगेन, इट इज नॉट अबाउट अ कॉलेज. You are going to study in a government university directly. For example, मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके फर्दर कॉलेजेस हैं. सिमिलरली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, उसके फर्दर कॉलेजेस हैं. यू आर गोइंग टू स्टडी डायरेक्टली इन द यूनिवर्सिटी, दैट टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इन जस्ट 23-24 lakhs. So that is the charm of Russia. So if you are considering MBBS abroad 2025, Russia is going to be a great option for you guys. Now moving on to our next destination, which is Georgia. If you are also thinking about MBBS abroad 2025, you might have heard about MBBS in Georgia. MBBS in Georgia भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. यहाँ पे ना बहुत सारे रूमर्स आए थे एक टाइम पे, that you would not be able to write next exam अगर आप जॉर्जिया से पढ़ते हैं. That is not true. Now we have written proof from ministry, from embassy, everywhere you can find it out. If you study from Russia or Georgia, you are eligible to write next exam in India and you are eligible to practice in India as a doctor. तो आप अपने माइंड से वो चीज़ तो निकाल ही दीजिए. I am the one who advocate a student कि स्टूडेंट को हमेशा सही चीज़ मिलनी चाहिए. I am your advocate already, so you do not have to worry about it. If I say Russia, if I say Georgia, it means you can come back, give the next exam and practice in India as well. So I am the one who personally don't guide someone कि हाँ आप चले जाओ हो ही जाएगा. No, I personally first of all visit those countries, do the fact check, and that is when we come and here and tell you about it. So be assured कि आपको कुछ भी गलत नहीं मिलने वाला है. You can stay calm and stay focused on your NEET exam. तो हम बात कर रहे थे MBBS in Georgia 2025 के बारे में. If you are also thinking about MBBS in Georgia, the budget is on little higher side when compared to Russia, क्योंकि रशिया में I would say कि कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा कम है, बट जॉर्जिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा है. स्पेशली करेंसी डिफरेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं. सो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 42-45 lakhs इतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए. देखो बहुत सारे लोग होंगे आपको कह देंगे 30 lakhs में हो जाएगा, 35 में हो जाएगा. हाँ होता था, बट अब नहीं होता है. बिकॉज ईयर ऑन ईयर फीस भी बढ़ती है, चेंजेस आते हैं, हर एक कंट्री में खर्चे बढ़ते हैं. इनफैक्ट अगर हम इंडिया में ही देखें तो फीस बढ़ती है एंड डॉलर का रेट भी बहुत चेंज हो गया है. पहले 35 lakhs में जॉर्जिया होता था, बट अब नहीं होता है. ऑल यू नीड इज
around 42 to 45 lakhs at minimum if you are thinking about MBBS in Georgia. अब ये 42 to 45 lakhs minimum बेशक है, but बहुत सारी यूनिवर्सिटी, I would say one of the best university भी जो है वो इसी बजट में आ जाती है, so you don't have to worry about it. अब जॉर्जिया में क्या है, Georgia is little different, when we talk about Russia, it's all about governments, but when we talk about Georgia, it is a mix of government and privates. यहाँ पे गवर्नमेंट महंगी है और प्राइवेट सस्ती है, और प्राइवेट ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है व्हेन कंपेयर टू गवर्नमेंट. वही ये हर एक कंट्री का अलग अलग होता है. यू कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल टू एन ऑरेंज. सिमिलरली यू कैन नॉट कंपेयर एंड रशिया टू जॉर्जिया. तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट बोथ हैव वेरी गुड प्रोडक्ट्स, आई वुड से, व्हेन यू think about them for your MBBS abroad destination. जॉर्जिया में बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी है. इंफ्रास्ट्रक्चर, आई वुड से, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं दैट आर इन टॉप 5 इन यूरोप. ऐसा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा. आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलेगी जो शायद इंडिया में अगले 10-20 सालों में कभी तो आएगी, अभी तो नहीं है फिलहाल. सो यू आर गोइंग टू गेट गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. रशिया से जब हम कंपेयर करते हैं तो जॉर्जिया में आपको बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलता है. ऑब्वियसली खर्चा भी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा है. यू वुड गेट वेरी गुड एक्सपोजर. पूरे यूरोप का एक्सपोजर आपको मिलने वाला है व्हेन यू चूज जॉर्जिया, बिकॉज जॉर्जिया इज सिचुएटेड ऑन यूरेशिया. यूरोप और एशिया के इंटरसेक्शन पे जॉर्जिया है. सो यू गेट वेरी गुड एक्सपोजर. In case you're looking forward for MBBS abroad 2025, you can consider Georgia as your destination. Now moving on to our third destination, which is MBBS in Nepal. I know थोड़ा सा weird लगता है सुनने में, like Nepal is far behind us, but that is not true when it comes to medical colleges and universities. I know you are being new to this, all this MBBS abroad 2025 stuff, but I am here to guide you. अगर आप सोच रहे हैं MBBS in नेपाल के बारे में, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है who are ready to spend around 50-55 lakhs. I know आपको सुनने में बहुत महंगा लग रहा होगा, इतने में 2 बच्चे रशिया से पढ़ जाते हैं, बट उस सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. द रीजन वाई स्टूडेंट और आई से और प्रमोट MBBS इन नेपाल इज देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, और द रीजन इज द फुटफॉल दैट यू सी इन कॉलेजेस इन नेपाल. मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि नेपाल में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी. मतलब कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंडिया गवर्नमेंट या प्राइवेट हमें मेडिकल कॉलेजेस में देखने को मिलता है, उतना ही सेम हमें नेपाल में देखने को मिलता है. आई हैव पर्सनली बीन टू नेपाल, आई वुड से 10+ times, एंड एवरी टाइम नेपाल हैज़ satisfied me in terms of medical education. मैंने बहुत सारे कॉलेज विजिट किए हैं और सब में आई वुड से कि नेपाल जो चार्ज कर रहा है 50-55 lakhs, इट इज़ टोटली वर्थ इट. सबसे बड़ा उसका जो रीज़न है वो है उसका मेडिकल एजुकेशन का सिलेबस, करिकुलम, विच इज एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी पेस्ट ऑफ इंडिया. मतलब कुछ अलग है ही नहीं. एंड ऑन दैट कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है. आपको हिंदी में ही सारे पेशेंट्स बात करते हुए मिलेंगे, एंड इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इंडिया. आपको वीजा भी नहीं चाहिए. आपको जब चाहिए आप आ सकते हो, जब चाहिए आप जा सकते हो. यू कैन पर्सनली गो एंड चेक आउट कॉलेजेस एंड देन यू कैन गेट योर एडमिशन डन. वो भी पॉसिबिलिटी है नेपाल में. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, जो आपको फुटफॉल मिलता है नेपाल में, आई हैव पर्सनली सीन 2000+ पेशेंट एवरी डे इन द हॉस्पिटल्स ऑफ नेपाल मेडिकल कॉलेजेस. देखो ये बहुत बड़ा नंबर है. इनफैक्ट बहुत सारे इंडिया के पेशेंट्स भी आपको नेपाल में मिलते हैं. कुछ एक ऐसे पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जिसमें नेपाल इज बेटर देन इंडिया. तो इसलिए इफ यू आर थिंकिंग अबाउट MBBS इन नेपाल, आई वुड से येस, इट इज अ ग्रेट ऑप्शन. और we are there to support you end to end. We have our staff available in Russia, Georgia, Nepal. आप कहीं पे भी चले जाओ. You do not have to worry about your child कि मेरी child की safety कैसी है, उसका procedure कैसे होगा. At the end of this video, I'll talk about the admission process as well. So make sure you stick till the end. अभी हम बात कर रहे हैं हर एक country की, and then I'll talk about the admission process as well. We'll move on to our next destination, which is Uzbekistan. Uzbekistan is another destination that you may choose for MBBS abroad 2025. Uzbekistan का budget बहुत ज़्यादा नहीं है. You need around 30 to 32 lakhs for the complete course. Yes, you heard it right. बहुत ज़्यादा budget नहीं है, budget friendly है. And if I talk about government and private, यहाँ पे भी private जैसा कुछ नहीं है. Barely 1-2 universities हैं private. That also, I am not in very much favor for private colleges in Uzbekistan. I would say you should also avoid it
अगर आप MBBS इन उज़्बेकिस्तान के बारे में सोच रहे हो, गो फॉर द गवर्नमेंट वंस। गवर्नमेंट वंस में बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं, ऑब्वियसली ताशकेंत, बुखारा, ये सब आपने सुना होगा। But yeah, as I said, in this video, I'm not going on to universities particularly, but yes, Uzbekistan is also something that you may consider because बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चाहिए कि खाना सेम हो और इंडिया के पास हो। सो इट इज़ जस्ट 3 hours फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू उज़्बेकिस्तान, तो बहुत ही कन्वीनियंट रहता है बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन दैट यू माइट लाइक टू कंसिडर फॉर MBBS अब्रॉड 2025। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ बांग्लादेश। I know Bangladesh has been suffering from some, religious rights, but the situation is not going to same all the way, right? इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, सो बांग्लादेश में भी होंगी। एंड एज ऑफ नाउ आई वुड से इफ आई लुक पर्टिकुलरली फ्रॉम एजुकेशन परस्पेक्टिव, बांग्लादेश इज़ वेरी गुड ऑप्शन। स्पेसिफिकली जैसा कि नेपाल में है, बांग्लादेश में भी वैसा ही है। द सिलेबस इज़ एग्जैक्टली द सेम, फुटफॉल बहुत अच्छा है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है इतना, एंड ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट। और डिसीजेज भी सेम है क्योंकि वेदर ऑलमोस्ट सेम है, बॉर्डर टच होता है अपना इंडिया का, तो इट इज़ quite a convenient option in case you want to look forward to Bangladesh. And I would personally say do not go by the religious terms because see, things do change and ये सब चीज़ें चलती रहती हैं. Right now, although the condition might not be great, but it is not going to be the same. But if you look from education perspective, it is a great option. So MBBS abroad 2025, Bangladesh is also option, but Bangladesh में ये ध्यान रखना कि सेशन जो है वो काफ़ी लेट स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल रशिया, जॉर्जिया, इन सब में सितंबर अक्टूबर में सेशन स्टार्ट होगा, तो बांग्लादेश में स्टार्ट होगा 2026 फरवरी मार्च में। तो इट इज़ काइंड ऑफ आपके 6 months थोड़े से वेस्ट हो जाते हैं, बट नेवरदलेस इट इज़ अ गुड ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम बांग्लादेश यू हैव कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान ऑल्सो। बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ऑप्शंस बाकी सबसे बेकार हैं या बहुत अच्छे हैं, बट आई वुड से दीज आर द एवरेज ऑप्शन दैट यू माइट वॉन्ट टू कंसिडर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स ऑलरेडी इन कंट्रीज़ में पढ़ रहे होते हैं, सो इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर देम टू गो टू दीज कंट्रीज। कजाकिस्तान इज़ बेटर देन किर्गिस्तान, तो एनी डे इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की आप दोनों में कन्फ्यूज्ड है, आई वुड से चूज़ कजाकिस्तान। बट कजाकिस्तान जो हमें एजुकेशन दे रहा है, इट इज़ अराउंड 30+ lakhs, उतना वर्थ आई वुड से इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग दैट वर्थ, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। अगर आप जाना चाहते हैं पर्टिकुलरली कजाकिस्तान में, येस यू शुड कंसिडर इट। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे भी बहुत सारी हैं, इट इज़ अ गुड ऑप्शन एज पर दैट, बट इफ़ यू वुड स्टार्ट कंपेयरिंग इट टू अदर ऑप्शंस यू माइट नॉट लाइक इट, तो वो आपके ऊपर है। बट इन केस यू पर्टिकुलरली वांट टू गो टू कजाकिस्तान, बिकॉज बहुत सारे ना पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि मैम रशिया में ना बच्चे को खाने की प्रॉब्लम आएगी या बच्चे को हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा दे आर वेरी मच आई वुड से अटैच टू देयर चाइल्ड एंड दे डू नॉट वांट टू सेंड देयर चाइल्ड टू रशिया फॉर एनी ऑफ द रीजन। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस भी रहते हैं पेरेंट्स के पास। इफ दैट इज द केस यू मे कंसिडर कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। कजाकिस्तान एनी डे इज बेटर देन किर्गिस्तान, और बजट रेंज दोनों का सेम ही है, अराउंड 30 lakhs। तो इन केस यू वांट टू कंसीडर दीज कंट्रीज फॉर MBBS abroad 2025, yes, these also could be an option for you. Now coming to the admission process for MBBS abroad 2025. While we are there to help you out, the admission process is going to be quite simple. All you need to do is give us a call on the numbers given on the screen, and me and my team are right there to help you out. आपको सिर्फ अपना सीट बुक कराना है, एंड द एडमिशन लेटर, इन्विटेशन, वीज़ा, आपका ट्रैवल, आपका करेंसी एक्सचेंज, बैंक अकाउंट, हाँ, एंड टू एंड everything we got it covered. Starting from your consultation to your convocation, as I said, we are right there by your side. So what are you waiting for? Pick up your phone and give us a call on the numbers given on the screen, and we are right there to help you out 24/7. I hope you would have liked this video. Till the next one, I would say goodbye.